Hello students, how are you everyone? Today we have to start a very unique and exam marks gaining topic digestive system. So I just want to welcome all of you on our YouTube channel Smart Study. If you want to get all our videos daily, then please like, share and subscribe our channel Smart Study. So first of all, we have to discuss about the digestive system. In the exam, in the RBSc board pattern, this chapter is contain approximately 6 marks. 1 marks is from MCQs like that 1 number questions, and 1 question is fall down from which have 5 number marks, which is alternate divided into 3 portions, 1, 2nd and 3rd. This one is 2 marks, this one is 2 marks, as third one is have 1 mark. So now begin the digestive system. In our mind, when we think about the digestion, then first of all the one thing is come out how our body get digest all the food material. So in this chain, digestion is the process in which body intake various type of food component. We know that very well. हम जानते हैं अच्छे से कि हमारी बॉडी क्या करती है, जितने भी जो फूड मटेरियल्स होती है, जो भी फूड मटेरियल्स है उनको क्या करेगा, बॉडी अंदर की तरफ क्या करेगा, इंटेक्ट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी eat the piece of food by the help of mouth, this process is called ingestion. This process is called what? This process is called ingestion. तो यहाँ पे आपको ये टर्म ध्यान में रखनी है कि इंजेक्शन जो है किसे कहते हैं. इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन नहीं है यहाँ पे, इंजेक्शन है, ध्यान देना. इंजेक्शन है फूड का इंटेक करना बाय द हेल्प ऑफ माउथ. Types of food component in our body which further transported by various digestive part. Various digestive part like alimentary canal have lot of types of digestive part. For example, stomach, small intestine, large intestine, and the various part of intestines also. So in this chain, the definition of digestion is the process by which complex food particles simply converted into simple food particles. This entire phenomenon, this entire event is called what? Digestion. तो यहाँ पे अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे. डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल, हाईलाइट करना है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल generally converted into simple food particles. This entire process is called what? Digestion. Got it? I think you can understand very well. So now in foods, lot of types of food component are present. We know that very well about the food components like the carbohydrate, vitamins, protein, roughage, minerals, water also. All these food component are present in our food which is having the complex food particles and our digestive parts converted into simple food particles. So now we have to discuss about the digestive organs. If you want to take the screenshot, then you can easily take the screenshot. We discuss all the digestive organs which participate in the digestion process. So the first one is mouth. Mouth roll up the various activities, and in the mouth two types of structure are present. The first one is teeth and the second one is tongue. हम जानते हैं कि जो माउथ होता है आज थोड़ा सा क्या है, मौसम बदलने से थोड़ा सा क्या हो गया, थोड़ा सा गला खराब हो गया. तो देखते हैं कि माउथ में जो है टीथ और टंग दो स्ट्रक्चर है. उसके बाद में आता है फेरिंग्स, उसके बाद में आता है अपना स्टमक, और देन आता है 4 नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन. हम जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है डियोडेनम, second one jejunum, and the third one is ileum. Got it? Duodenum, jejunum and ileum. The last part of alimentary canal is large intestine, which have also 3 parts. The first one is cecum, second one is colon, and third one is rectum. तो पहला कौन सा है स्टूडेंट्स? पहला है सिकम, दूसरा कौन सा है? कॉलन, और थर्ड वन कौन सा है? रेक्टम. यहाँ पे ये माउथ से लेके जो रेक्टम तक कंप्लीट जो पोर्शन हमने लिया है, ये सारा ही क्या कहलाता है? एक एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैनाल? कैनाल का मतलब होता है क्या? एक लंबी सी ट्यूब, मतलब लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूब लाइक structure. Got it? And the length of alimentary canal is approximately 32 feet long. Got it? तो यहाँ पे जो हमने सारे के सारे डाइजेस्टिव जो ऑर्गन्स है उनको डिस्कस कर लिया. वन बाय वन जो हम एक एक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की डिटेल स्टडी
करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो डिटेल स्टडी करेंगे वो करेंगे किसकी, माउथ की। तो देखते हैं माउथ की सबसे पहले स्टडी क्या है। तो यहाँ पे माउथ को अपन देखेंगे तो माउथ में जो दो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है वो बताइए, पहली टिथ और दूसरी क्या बताई है, टंग। तो देखना माउथ की स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे अपन देखेंगे जनरली ना, तो यहाँ पे ये हर बार जो है सर मेल बनाते हो, आज थोड़ा फीमेल बना देते हैं, ठीक है। ये लो देखो यहाँ माउथ से जो है ये यहाँ से ओपनिंग हो रही है किसकी, माउथ की। और अपन जानते हैं कि जो माउथ की ओपनिंग होती है विच कंटेन टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, अपर लिप एंड द लोअर लिप, जिन्हें हम होठ बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। अपर लिप्स हो गया, देन डाउन लिप्स या लोअर लिप्स। फिर यहाँ से चलती है अपनी क्या, एलिमेंट्री कैनाल, जो लास्ट रेक्टम तक जाती है। तो यहाँ पे जो माउथ की जो केविटी होती है, ये जो कंप्लीट केविटी है, इस केविटी को अपन क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ओरल केविटी। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड ओरल केविटी। अब ओरल केविटी की बात करें तो इसके अंदर जो है पहली एक केविटी आती है, वो आती है बक्कल केविटी। कौन सी आती है, बक्कल केविटी। और बक्कल केविटी की बात करें तो इसमें जो कंटेंट होता है वो आता है अपर जो एंड लोअर जो, मतलब ऊपर वाला जो आएगा और साथ में कौन सा आएगा, लोअर जो। तो यहाँ पे देखो देखना है क्या कि अपर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैक्सिला। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, मैक्सिला। और जो लोअर जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैंडिबुलर। क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर। तो यहाँ पे मैक्सिला और मैंडिबुलर दोनों क्या करेंगे, जो बकल कैविटी को फॉर्म करेंगे। अब देखो क्या होता है, हम जानते हैं कि वी नो दैट वेरी वेल अबाउट द टीथ, कि क्या होता है कि जब एक बच्चा होता है, उस बच्चे की बात करें, इन्फेंट की बात करें या न्यू बॉर्न बेबी बोल लो, या इसको जो है साइंटिफिक में बोलते हैं क्या, इन्फेंट। क्या बोलते हैं, इन्फेंट। इन्फेंट की बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या देखेंगे अपन कि इसके अंदर जो टिथ की जो काउंटिंग होती है वो कितनी होती है और वो कैसे जो है उसको फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या, टिथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टिथ, ठीक है। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे टिथ। सबसे पहला पॉइंट जो टिथ के बारे में आता है वो ये आता है कि टिथ कैसी है, टिथ एक नॉन लिविंग, कैसा, नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग स्ट्रक्चर, जैसी है नॉन लिविंग और लिविंग स्ट्रक्चर होती है। अब बच्चों के मन में एक बात आती है, सर हाउ यू कैन से दैट द टीथ आर लिविंग एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। तो देखो नॉन लिविंग की बात करते हैं तो हम जानते हैं कभी कभार क्या होता है, जो हमारा टीथ होता है उसका अपर पोर्शन टूट जाता है तो हमें पेन नहीं होता है। बट इवन इन दिस कंडीशन वी जस्ट डग आउट द टीथ फ्रॉम द रूट। अगर अपन दांत को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करें तो हमें क्या होगा, दर्द होगा। दर्द नहीं होता है मतलब नॉन लिविंग, दर्द हो रहा है मतलब लिविंग। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही कंडीशन में जो है टीथ होता है। क्लियर। सेकंड, टीथ की बात की जाए तो ये किससे मिलकर बने होते हैं, ये बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एज वेल एज फॉस्फेट ऑल्सो, कैल्शियम फॉस्फेट बोल सकते हैं CaSO4, ठीक है। इससे ये मिलकर बने होते हैं। और टिथ की जो अपर लेयर होती है, सबसे ऊपर जो चमकीली होती है, जो शाइनिंग करती है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं क्या, थर्ड नंबर पे हम लेंगे, उसको बोलते हैं इनेमल। एनिमल ले रहा है, एनिमल क्या बोल रहा है, एनिमल इनेमल, ठीक है। इससे स्टार्ट इनेमल बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे इसका जो फैक्चुअल की फैक्टर आता है वो ये आता है कि इनेमल इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड की जो सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, इनेमल होती है। एग्जाम में जो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनेमल जो है या टीथ के ऊपर सबसे हार्डेस्ट जो लेयर पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, वो क्या होता है, इनेमल होता है। अगली बात करते हैं ज्योति। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि टीथ क्या होते हैं, जो मसूड़े जिन्हें बोलते हैं, गम्स बोलते हैं इंग्लिश में। जो गम्स में क्या होते हैं, सारे के सारे दांत जो है फिट होते हैं। तो टीथ आर प्रेजेंट या सिचुएटेड इन ए जो लाइक सॉकेट। सॉकेट का मतलब होता है सांचा, जो लाइक सॉकेट। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड व्हाट, इफ the teeth are situated in a zo like socket structure, this situation, this arrangement is called what, this is called thecodent। थेकोडेंट क्या बोलते हैं इसको, थेकोडेंट। कि जो टीथ होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है किसके अंदर, गम्स के अंदर, वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है, थेकोडेंट कहलाता है। और हम दूसरी चीज की बात करेंगे, दूसरी ये है कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनके अंदर इंटायर लाइफ में क्या होता है, 2 टाइम्स टीथ आर कमिंग आउट। फर्स्ट वन मिल्क टीथ एंड सेकंड वन इज परमानेंट टीथ।
तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो दो टाइप के अरेंजमेंट है इंटायर लाइफ स्पेन के अंदर, संपूर्ण जो जीवन काल है उसके अंदर, तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड व्हाट, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड फाइकोडेंट। फाइकोडेंट क्या बोलते हैं इसको, फाइकोडेंट, या बोलते हैं डाइफाइडेंट, क्या बोलते हैं, डाइफाइडेंट। So in this chain we just discussed the diploident type of teeth. Then the first one is what? First one is milk teeth and second one is permanent teeth. Got it? अब हम यहाँ पे बात करेंगे मिल्क टीथ की, तो इनकी काउंटिंग कितनी होती है? दे आर 20 numbers, 20 number present in kids. Got it? Approximately 10 to 12 years old boy and old girl having 20 number of teeth. This type of teeth is called what? Milk teeth. Next, teeth formula. What is the formula of teeth in kids? 2101 upon 2101 multiply by 2. 2102 2102 multiply by 2. So this is show upper jaw, this is show lower jaw. 2 1 2 3 2 5 5 multiply by 2 10 upon 10. Then total number of teeth is 20. यहाँ पे बात है सर जीरो क्यों लिखा है? यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब यहाँ पे है कि जो बच्चा होता है, जो किड्स होता है, उसके अंदर जो है जो प्रीमोलर टीथ होते हैं, प्रीमोलर आर कंप्लीटली एब्सेंट. प्रीमोलर टाइप्स ऑफ टीथ क्या होते हैं बच्चे के अंदर, इन्फेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 2102 मतलब 00 लगा दिया है. अब क्या होता है कि ये मिल्क टीथ जो होते हैं, these teeth are replaced by permanent teeth. Got it? And the number of permanent teeth is equivalent to 32. What is the number of permanent teeth? 32. So now we discuss about the permanent teeth formula. What is the formula of permanent teeth? 2123 upon 2123 multiply by 2 upper jaw and the lower jaw. 3 to 5 1 6 to 8 8 multiply by 2 16, and the lower jaw also contain that type of situation, then contains 16, then total number of teeth is 32. Got it? So this is the basic and detailed study of teeth. Now we have to discuss about tongue. So I hope so you can easily understand all the digestive parts and the process of digestion and all the food component which is involved in the digestive process, as well as the first structure which is present in oral cavity and have their own name which is called buccal cavity, and the first one is teeth, and all the detailed study of teeth you can easily understand. Thank you. और एक चीज जो मैं आपको बता दूं, ये जो साइंस की क्लास रहेगी आपके लिए वो डेली रहेगी, ठीक है. कंप्लीट जो साइंस का डिटेल सिलेबस है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट और बायोलॉजी वो सारी की सारी जो आपको कंप्लीट करवाई जाएगी. आशा करता हूं, आई होप सो you can understand very well about the digestion. Thank you.